ਦਾ ਖੂਨ 에ਅਰ ਬੈਗ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? बोल 10 उन्होंने कितने मरवाता साडा। इस पोजीशन में कभी भी डेड बॉडी अगर ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो इस पोजीशन पे आप कभी आ ही नहीं सकते। कितनी भी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, आपने बेल्ट लगाइए नहीं लगाइए, और दीप बिना बेल्ट के कभी ड्राइव नहीं करता था। जांच होनी बनती है। और जो आप अगर गाड़ी की टक्कर देखोगे तो अगला हिस्सा गाड़ी के पिछली सीट तक आ गया, बीच में एक आदमी बैठा हुआ है और बॉडी में कोई स्क्रैच नहीं है। ये कैसे हो गया? ਬਾਈ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਖੜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਡਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਛਲ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅੰਦਰ ਧੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰਖੌਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। RJ32GB 8377 RJ 32GB 8377 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਜੋਤ ਦੱਸਵੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਟਾਇਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਹਿਰੋ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਆ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਐਂਡੈਵਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਮੋਰੇ ਇੰਜਨ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਆ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਟਰਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪਾਸਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੱਜਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਸਾ ਸੇਵ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ 에ਅਰ ਬੈਗ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ 에ਅਰ ਬੈਗ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਕੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਓਏ ਮਨਜੋਤ, ਉਹ ਮਨਜੋਤ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ 에ਅਰ ਬੈਗ ਨੂੰ ਲੱਗਾ।
इस पास्यों ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਿਖਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਲਾਲ ਆ, ਗੱਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਲਾਲ ਆ, ਗੱਦਾਰ ਆ, ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੋਲ ਗਿਆ ਖੂਨ ਆਪਣਾ। मारता भाई साडियां नहीं मरवाता। मनजोत की कहेगा, खोले के बोल यार, दस लोगों की कहना बोल की क्यों चुप कर गया है, की हो गया तेनू बोल, दस उन्होंने किन्ने मरवाता साडा। कल्ला ही तुरया फिरदा ही, 50 वार कहा तेनू बाई ना तुरया कर कल्ला, तेनू कहंदे ही ना जाया कर कल्ला किते। साडी केड़ा मन्नी है, साडी केड़ा मन्नी है। 50 वार कहंदे सी भाई कल्ला ना निकलिया कर, साडी केड़ा मन्नी है, साडी केड़ा मन्नी है ने। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਸੀਂ पूरी जो वीडियोग्राफी गाड़ी जो एक्सीडेंट की लोकेशन थी वहां से विद इन फ्यू मिनट्स वो उठा ली गई है, और अगर वो गाड़ी उठाई है उसकी प्रॉपरली वीडियोग्राफी होगी। और हम सभी जो उनके भाई, उनके प्यार करने वाले जो यहाँ पे पहुंचे हैं, रातों रात पहुंचे हैं, और हम चाहते हैं कि वो भी जनतक की जाए। वो भी आम कोई एक्सीडेंट होता जो कितना टाइम गड्डियां नहीं चुके जाते। जैसा आपने बताया कि स्पॉट को देखकर भी लग रहा है कि इस तरीके से ये मिसहैपनिंग नहीं हो सकती, हादसा नहीं है। क्या किसी पर शक भी है? परिवार से भी आपके उनके भाई भी आए हैं, बात हुई होगी? देखो, उनको भी उतना ही मालूम है जो हमें आके यहाँ पे मालूम पड़ा है। और जैसे मैंने बताया कि एक प्रॉपरली प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। अगर जिस प्रोसीजर के तहत उस गाड़ी को उठाया गया वहां से, और उस जो वीडियोग्राफी हुई है वो भी पब्लिक की जानी चाहिए, ताकि जो हमारे मन में शक है वो क्लियर हो सके। क्या इनको किसी तरह का खतरा है जो इतनी भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो भी है उसकी निरपेक्ष जांच हो, पता चले। अगर एक्सीडेंट है हम उस एक्सीडेंट को भी मानेंगे, अगर नहीं है तो अगर कुछ हुआ है, कोई साजिश है, तो हमारी क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत प्यार करते हैं, सड़कों पे उतरोगे। आम एक्सीडेंट होता 2-2 गड्डियां नहीं चक्की जाता। वही जैसे ये भाई साहब भी बता रहे हैं कि नॉर्मल एक्सीडेंट में
और विद इन फ्यू मिनट्स क्यों मतलब ऐसे गाड़ी उठाएगी? विद इन फ्यू मिनट्स ये एकदम इतनी जल्दी एक्शन क्यों हुआ? उस एक्शन की वजह से सभी के मन में शक है, वो शक क्लियर करना चाहिए। बॉडी पे पूरा कोई स्क्रैच नहीं है और ये पोजीशन में उसकी डेड बॉडी मिली है। इस पोजीशन में कभी भी डेड बॉडी, अगर ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो, इस पोजीशन पे आप कभी आ ही नहीं सकते। कितनी भी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, आपने बेल्ट लगाई है नहीं लगाई, और दीप बिना बेल्ट के कभी ड्राइव नहीं करता था, और इस पोजीशन में डेड बॉडी कभी आ ही नहीं सकती। और विद इन 5 to 10 मिनट्स वहां से गाड़ी लिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और क्यों हुआ, और इसका प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा और इसकी जांच होनी बनती है। और जो आप अगर गाड़ी की टक्कर देखोगे तो अगला हिस्सा गाड़ी के पिछली सीट तक आ गया, बीच में एक आदमी बैठा हुआ है और बॉडी में कोई स्क्रैच नहीं है। ये कैसे हो गया? तो आप सर कुछ डिमांड करते हैं कि कुछ इसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जो स्टेट की जिम्मेवारी बनती है, अगर कोई पब्लिक फिगर, कोई ऐसा चाहने वाला लोगों का कोई जा रहा है, सो उसके लिए कोई भी तो वो क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जस्ट एक नॉर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल प्रोसेस प्रोसीजर होना चाहिए, वही हम मांग है हमारी कि उसकी क्लैरिटी पब्लिक को देनी चाहिए। क्योंकि आज जैसे भाई साहब ने बताया 50-100 गाड़ियां अभी निकल चुकी हैं, और पूरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप देखोगे ट्रेंडिंग पे दीप सिद्धू का नाम चल रहा है। तो उसको बाई एम्बुलेंस ही लेकर आया जाता है लोगों की मदद से, और 1.5 घंटा 2 घंटे उसको निकालने में लगे हैं। खरखोदा हॉस्पिटल में थे जब हमारे को बोले थे, तो उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया था। वो उन्होंने उसको कहाँ एडमिट करवाया है वो अभी मुझे तो रात को फोरेंसिक कल बताया उन्होंने, क्या कोई बयान दिया या कैसे एक्सीडेंट हुआ, कुछ बताया उसके बारे में? नहीं, वो उन्होंने बता दिया था कि वो जा रहे थे और ट्राला से एकदम से उसने ब्रेक कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ड्राइवर है क्या, उसको पकड़ लिया गया है या नहीं? अभी ड्राइवर को अभी क्या सर आइडेंटिटी लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर उसका बहुत क्लियर है, विजिबल है, तो उसे क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, वो आइडेंटिटी लोकेट कर रहे हैं, जिसका हमने नंबर ले लिया है साइबर सेल से, और अभी जब हमारी टीम में भी गई हुई है उसको नैप करने के लिए जल्दी। सर ट्राले में लोड क्या था, क्या कुछ लोडेड था, कुछ पता लगाया कि वाकई डिलीवरी देने जा रहा था? उसके बारे में मुझे कोई पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है? हाँ जी, पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। सर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? 3 डॉक्टर्स। कौन कौन है सर? सर नाम भी बता दीजिए डॉक्टर्स का। काफी बड़ा देश का सबसे बड़ा हाईवे है, EMP का जो उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया था। लाइटें वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, बंद लाइटें थी, अंधेरे का समय था और जंपिंग बहुत ज्यादा है। वो NHAI का मैटर है, उसके बारे में सर डॉक्टर्स का नाम बता दीजिए, कमिटी डॉक्टर्स का भी नाम बता दीजिए सर, एक बार ऑफिशियल हो जाएगा। डॉक्टर पंकज टीम को लीड कर रहे हैं अभी उन्हें। सर हालांकि परिवार ने बता दिया कि दीप सिद्धू जो है नशा नहीं करते थे, लेकिन ऐसी कोई चीज बरामद हुई गाड़ी में से? नहीं, अभी ऐसा कुछ बरामद नहीं हुआ है। बाकी फोरेंसिक वालों ने पूरी गाड़ी को चेक किया है और जो भी वो रिपोर्ट देंगे उसको। तो सिर पर ही ज्यादा चोट आने से मौत हुई है? हाँ बिल्कुल, हेड इंजरी है, उनका स्कल फ्रैक्चर हुआ है। सर एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल, ये लगातार उनके दोस्त और क्लोज एड्स कह रहे हैं कि सस्पिशियस कंडीशन में ये गाड़ी मिली है और इसलिए कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। आप लोगों का क्या इसमें राय है? इस बारे में हमारे पास तो कोई इस तरह की बात आई नहीं है अभी तक। कोर्ट मॉनिटर्ड है, ठीक है। हमने FIR रजिस्टर एक्सीडेंट डेथ की हुई है, उसके बाद सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में लाया गया पोस्टमार्टम के लिए, क्या कहना चाहते हो, किस तरह से क्या कार्रवाई अब तक की जा रही है? कानूनी अनुसार जो है 174 कार्रवाई शुरू की गई है जी, और घर वालों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं। अब पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है जी, लगभग इसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। वीडियोग्राफी साथ में। सर फोरेंसिक टीमों ने रात को निरीक्षण किया था, कुछ ऐसा कोई क्लू मिल पाया? कुछ देखिए अभी जांच चल रही, जांच के बाद पता लगेगा। तो ड्राइवर के बारे में, जो ट्रक ड्राइवर था, उसके बारे में कोई जानकारी है? फरार है अभी? इसके बारे में पता नहीं लगा है और तफ्तीश चल रही है। तफ्तीश में जो भी होगा आपके सामने ला जाएगा। ट्रक जो है खराब खड़ा था या अचानक ब्रेक मारी इसने? देखिए ट्रक वहाँ पे खड़ा हुआ था और पीछे से गाड़ी लगी है, ड्राइवर साइड गाड़ी लगी और में दीप सिद्धू की मौके मौत हो गई। सर परिवार की तरफ से कौन आया? सर परिवार की तरफ से उसके बड़े भाई आए हैं, उनका बयान दिया। तो इनके साथी जो महिला दोस्त है उन्होंने कुछ कहा इस बारे में, कुछ बयान दिया? अभी वो अस्पताल में दाखिल है, चोटिल है वो, कहाँ पे उनके बयान लिए जाएंगे। वो खरखोदा में दाखिल करा। वहाँ दाखिल नहीं, वहाँ डॉक्टर ने मना कर दी। PGI तो नहीं है सर? अभी मुझे मालूम नहीं इस बारे में, उसके बताऊंगा। सर क्या ट्रक मूविंग पोजीशन में था या फिर स्टैंडिंग? देखिए मैं रात को मौका पे नहीं गया था, रात को दूसरे DSP साहब मौका पे गए थे।
मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है, मैंने जो पता लगा मैं आपको बता दिया। सर आप आ जाइए। डीएसपी साहब मैं बता दूं। सर क्या कहना चाहेंगे जो दीप सिद्धू की जो सड़क हादसे में मौत हुई है, आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, अभी बोर्ड से पोस्टमार्टम हम करवा रहे हैं, वीडियोग्राफी भी करवाएंगे उसकी, और अभी पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। सर हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो ट्रक है वो चल रहा था और किसी कारण से पीछे से इस व्हीकल के साथ टक्कर हुई है, जिससे कि ये ट्रैजिक इंसिडेंट। ट्रक का जो ओनर है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनसे भी हमारी टीम्स उनको आइडेंटिफाई करके पूछताछ करेंगी और ड्राइवर के लिए हमारी टीम्स एफर्ट्स कर रही हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही उसको अपनी